Hello, everyone, and welcome to the Mitti Pav podcast, your source for irreverent tajzi on Indo-Pak affairs with me, Usman Zafar, and my co-host, Amit Julka. Kaise ho, Amit? How's everything going? Enjoying my lazy Sunday. And thank you, Usman, for making it not so lazy. So, Well, I had anything other than a lazy Sunday. For benefit of listeners, this was supposed to be recorded much earlier, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरा बिजली का मसला हो गया था घर पे. Load shedding is a phenomenon which I've realized much of Western Europe is not really aware of. So they don't know what load shedding is. They kind of know what power outage is, लेकिन वो उनके लिए बड़ा major crisis होता है. जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने हैक कर दिया उनके systems, but over here it's like a very very common thing. राइट. और उनको लोड शेडिंग आई डोंट थिंक ऐसे समझ आता है. उनको लगता है कि कोई क्रैश डाइटिंग की कोई चीज है बट आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड इट एज अ बिजली का मसला. सो एनीवे, और कल जो है इंटरेस्टिंगली वी वर रिकॉर्डिंग अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट और दरमियान में चूंकि पानी का मसला हो गया था, मेरी टैंकी में पानी खत्म हो गया था, एंड एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन वी वर डूइंग आवर रिकॉर्डिंग, एट दैट मोमेंट द वाटर टैंकर जस्ट शोड अप आउटसाइड माय हाउस, सो आई हैड टू क्विकली एब्रप्टली फिनिश द पॉडकास्ट फॉर इंट्रो आउट्रो करके सो दैट आई कुड एक्चुअली गेट वाटर इनटू माय हाउस एज वेल. सो really interesting weekend that I've had. Right. This is also a great segue कि हम लोग शायद अपना Patreon जल्दी कर दें. और आपको पता है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है. बिजली पानी के मसले तो देख ही रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज जितने आप अपने डॉलर है, हाँ, वैसे वेरी पॉसिबल है कि हम जो है ना आफ्टर ऑल आवर पॉडकास्ट प्रमोशन ऑल हम पेट्रियन पे पेज बना दें लिफाफा पॉडकास्टर. Well, it should come across as no surprise that today's episode completely coincidentally happens to deal with an issue which is somewhat related to these crises, which is on the problem of climate change and its mitigation. जैसे कि आपको पता है जून 6 जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं फोकस करते हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर, एंड नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज and what it means, but actually trying to look at the impact that it has on their respective countries as well as the world at large. This is a very important day, Amit. Right. And also most importantly, their social media profiles, they have to keep up to date on that day. Of right? course, that's the most important thing about World Environment Day. You know, आज के लिए हम pretend करते हैं कि हम we give two flying Fs about it. वैसे आपस की बात है, मुझे भी किसी ने रिमाइंडर फेसबुक पे भेजा था तो इसलिए मैं एपिसोड कर रहा हूँ. I probably wouldn't have, but it's an important day, Amit, because it's the one day in which we are trying to kind of pay a closer attention to the effect that climate change is happening across the world and of course within our own countries and how it affects us. And it should come across as no surprise that South Asia is one of the most affected regions as far as climate change is concerned, क्योंकि हमारे Himalayan glaciers भी हैं और उसके साथ साथ rainfall की intensity भी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है. So there is a serious likelihood that there is going to be a major environmental crisis in the coming years in this particular part of the world. और specifically पाकिस्तान और इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा vulnerabilities और बहुत expected है कि there's going to be a lot of problems in the years to come. तो we thought कि हम जो है एक two-parter episode करें, once again looking at the respective situations in our countries and what it means not just for us but also for the overall region. तो हम एक 2 पार्ट एपिसोड कर रहे हैं. पहली एपिसोड जो है हम कर रहे हैं पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल सिचुएशन के ऊपर, कौन सी वनरेबिलिटीज इस वक्त ज्यादा थ्रेटनिंग है और उस पे हम क्या मिटिगेशन कर सकते हैं. सो वी आर वेरी वेरी ग्लैड कि आज इस इशू के ऊपर बात करने के लिए वी हैव विद अस फातिमा यमीन. शी इज अ क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल डिजास्टर एक्सपर्ट बेस्ड इन इस्लामाबाद. हर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी, मैपिंग वनरेबिलिटीज एंड ह्यूमन जियोग्राफी. तो बहुत बड़ा रेज्यूमे. इन्होंने बलोचिस्तान, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और सिंध में बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया हुआ है, वर्किंग अलोंगसाइड लोकल कम्युनिटीज, एंड बड़ा इनका इंटरेस्टिंग काम है विद रिगार्ड्स टू वाटर मैनेजमेंट, विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड. तो वी आर वेरी ग्लैड दैट मिस फातिमा कैन जॉइन अस ऑन टुडेज पॉडकास्ट. कैसी हैं आप फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. You guys are having me over in this podcast, even though I've been in the next room listening through all of your others. But this is a treat. Yes. Because I was actually invited for this and not paid in any way.
Don't worry, we're not paid either. हमने इसलिए तो Patreon page set up करना है. Hey man, that's you both, like, you know. But do This is all alienated labor. So it's and also it aligns well with our foundational principle, which is nepotism. So that's also another part of it. अगर ना हो तो आप पाकिस्तान इंडिया से कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल. Nepotism is part of it. Like it's also one of those keep your friends close, keep your enemies closer sort of thing. So it's kind of like that. That's what it happens. It works really well. Thank you so much, guys, for having me over. And yes, Amit, you were absolutely right when you said कि social media post से हमें याद आ जाता है कि एक दिन है जिसमें हमने अपनी सारी जो है ना passionate और love renditions of what environment means, जब हम उस दफा hiking के लिए निकले थे या जब हमने when we saw a litter of puppies on the road, बिल्कुल. तो फिर हमें कितना जो है ना नेचर पे प्यार आया था, तो फिर जो है वो तो वो हम सारा ना फिर रिमाइंड करवाते अपने आप को. और फिर हम एक पैशनेट पोस्ट लिखते हैं, फेसबुक की हो या ट्विटर की हो, और फिर हम उसको जो है हम समझते हैं हमने अपना काम फिर हम समझते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया है. हमने लोगों को सोचने का मौका दिया, हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि देयर इज सच अ थिंग एज World Environment Day. Bilkul. So I'm going to set the platform for today's debate, and I'm going to start with a UN report, which as usual warns के world में जो soils हैं वो खराब होते जा रहे हैं. New research has found that warming temperatures are starving the planet's lakes of oxygen. और एक WWF की report है, वो कह रही है कि जी मुख्तलिफ जानवर जो हैं जिस तरह snow leopards, bumblebees, emperor penguins, they might be becoming more and more extinct over time. A few days ago, we also found out that the last white rhino has just died as well, which means that species is extinct. And temperatures today are around 1.2 degrees Celsius. अब मसला ये आता है कि जब भी इस किस्म के फैक्ट्स या फिगर्स की बात की जाती है ना, इधर के लोग जो हैं उनका एक बड़ा एक पर्टिकुलर जवाब होता है, बड़ा एक वो ना जेनेरिक जवाब होता है, जिसके जी देखें जी लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा, बेरोजगारी हो रही है, और आप लोगों को जो है ना पौधे और जानवर बचाने की आप लोगों को बड़ी पड़ी हुई है. लाइक व्हाट डू यू से टू पीपल हु रियली genuinely think that climate change is only a priority that the developed world can care about or afford to care about, and developing countries like ours जिनके लिए शायद livelihood ज़्यादा important है, employment ज़्यादा important है, poverty and starvation जो है ज़्यादा important issues हैं, why should they care about climate change? So थोड़ा सा मेरे अंदर का कीड़ा जो है ना वो जरा जाग गया, तो उसके अंदर वो I'm gonna go into the Aristotelian mode of discussion, which is I'm going to ask you a question over your question now. is कि जब आप ये statistics पढ़ते हैं कि इतना जो है ग्लेशियर वो मेल्ट हो गया है, इतना रिसीड कर गया है, इतनी स्पीशीज जो है वो जा रही है, व्हाट डू दो स्टैटिस्टिक्स मीन फॉर यू, या ये कितने हद तक ये इम्पैक्ट फैला हुआ है इसका? The reason I was asking this question was कि जब आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे या रिपोर्ट्स के अंदर जब आपको फिगर्स जो है वो आपके ऊपर मुसलसल बम्बार्ड की जाती हैं, तो क्या आपको सुनने वाले को जो कि शायद इसकी एक्सपर्टीज ना रखता हो, इसके बारे में ज्यादा मालूमात ना रखता हो, क्या उसको समझ में आता है कि उस फिगर का मतलब क्या है? नहीं, ठीक है ना, abstract सा सेंस होती है और कुछ ज्यादा. It's actually very, to be honest, statistics are a very elitist thing. It is, and I found climate experts particularly off-putting because they seem to be talking in a language they don't understand. और ये by the way अभी COVID में भी आपने देखा ना, फाउची के ऊपर लोगों ने यही कहा है, like people just don't trust experts when it comes to these sorts of issues. No, it's not the trusting of the experts part. It's the part about who is speaking the language. Right. Usually what Western experts or any other expert thinks that scientific language is a universal language because it is objective, because it is not marred by any political or any other ethnic or any other social narrative. That means that it's very logical, it's very numerical, it's like 2 + 2 = 4, so it can be understood by everyone. और वो क्या करते हैं कि इसी लैंग्वेज को अपनाते हैं. अब ये आइडिया किसने उनके उसमें डाला है? ये आइडिया जो है एक बहुत वेस्टर्न आइडिया है, जो कि जब वेस्टर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब आई है तो उसके अंदर इस लैंग्वेज को यूनिवर्सलाइज किया गया है. अगर आप पिछले साइंसदान और एक्सपर्ट्स की लैंग्वेजेस देखें, जिसमें अवेसीना के आप नोट्स पढ़ लें, आप अराजी के नोट्स पढ़ लें, जब उन्होंने किताबें लिखी हैं क्रिश्चियन ऑडियंसेस के लिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशंस के लिए, तो उन्होंने
किसी हद तक अपनी लैंग्वेज को अडेप्टेबल बनाया है उसके अंदर. सो फॉर एग्जाम्पल अविसीना का जो मेडिकल बुक दैट ही रोट फॉर द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन यूरोप आफ्टर मच बीइंग पुश्ड इनटू बाय अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो जब उसका पहला चैप्टर है वो सारी एक तमहीद है किस तरीके से दीन और साइंस का आपस में एक मिलाप है, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ईसाइयत को भी बीच में शामिल किया, टू द एक्सटेंट दैट अ लॉट ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट्स हु वर क्रिश्चियंस हु रेड इट सेड इसमें और जो अविसीना कह रहा है और जो हमारी टीचिंग्स है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. ओनली देयर वाज सम क्लर्जी दैट सेड इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ऐसे दिन आते हैं, जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं और जब हम ये सब चीजें न्यूज में भी, हम हर जगह हम समझते हैं कि आम आदमी को जो है ना तालीम दे रहे हैं, हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली डूइंग द ऑपोजिट. You're actually desensitizing. The more you share statistics, the more you share figures, the more you disconnect the Aam Aadmi from what the issue is. Right. एब्सोल्युटली. अच्छा, इधर मैं दो चीजें, एक तो मैं पहले बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारी काफी ऑडियंस को शायद ना, अविसीना या इब्न सीना एक फिलोसोफर थे इस्लामिक वर्ल्ड के, शायद 12वीं सदी के थे या शायद आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट एनीवेज ही हैज रिटन थिंग्स ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स. एक तो ये, बट दूसरी चीज जो आपका जो पॉइंट था ना फातिमा, एक्चुअली दैट स्ट्रक अ कॉर्ड इन मी, क्योंकि जो आपने कहा था कि ये जो है कि जी नंबर सबसे ऊपर वाली चीज है, दैट दे आर द ट्रूथ, कि ये मतलब ये सच है और हर एक इंसान पे ये मतलब नाफिज होता है ये सच, और वो यकीन कर लेगा ऑटोमेटिकली. इस सोच में ना एक जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि रैशनैलिटी एक तरफ है और जज्बात एक तरफ, राइट, और वो उसके बीच में एक मसनूई सी, एक आर्टिफिशियल सी एक उसमें से दरार डाल देता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कि इनका मिलाप नहीं हो सकता. आपने ये तो कहा कि ये वेस्टर्न एनलाइटनमेंट थॉट है, बट मैं तो कहूंगा कि ये वेस्ट में भी पूरी मकबूल नहीं है, क्योंकि अगर आज आप डोनाल्ड ट्रंप और ये बाकी सब चीजों उनका जो कामयाबी है वो देख रहे हो, तो उधर भी मासेस में ये सोच इतनी कोई असर रसूख नहीं रखती है, राइट. सो यू हैव स्ट्रक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देयर, दैट हाउ वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, कि हम उस लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उसको जोड़ते हैं कि नहीं, ठीक है, लोगों की आम जिंदगी से उसको जोड़ते हैं कि नहीं, और उसको एनवायरनमेंट को हम एक अलहदा चीज करते हैं कि एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, एक एनवायरनमेंट है जो कहीं बाहर है, ठीक है, कहीं जंगलों पौधों में, वो ऐसा नहीं है कि हमारे रूम का भी हिस्सा है, कि हमारे वजूद का हिस्सा है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट इज लैकिंग. एंड यू मेंशन्ड हाउ इब्न सीना incorporated like concepts from Christianity. I'm thinking like in the subcontinental context, जब हमारे जो पुराने जो शायर हैं या जो poets हैं, उनकी शायरी में कितनी imagery है, and you know, and why don't we just use that and not in an instrumental way, in a real synthesis in that sense. So, but yeah, I'll let you continue. Sorry, मेरा monologue. I'm so sorry. No, you're absolutely right. And और यही disconnect है जो कि हमें आम आदमी के साथ, माहौल के ऊपर, जानवरों के साथ मोहब्बत के ऊपर, हमारा माहौल किस वक्त कहाँ जा रहा है और क्लाइमेट चेंज का एक्चुअली में क्या मतलब है, वो हमें डिस्कनेक्ट कर देती है. उसकी मैं मिसाल देती हूँ कि एक न्यूज आई थी कि मई के बीच में ही आई थी कि इस वक्त आर्कटिक सर्कल के अंदर जो टेम्परेचर जा रहा है समर्स का, दैट्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड in the Arctic Circle. Really? Right? This was on the 19th of May. कि आज 19th May में Arctic Circle के अंदर जो temperature है वो 30 degrees है. Now in summers, this is supposed to be in minus, I think. Right. But it's 30 degrees centigrade. So you can imagine what happens to an ice cube when you put it in your room at like 20 degrees centigrade versus when you put it on the stove, right? At 100 degrees centigrade. So ये जो jump है इतना ज्यादा temperatures के अंदर, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, लोगों ने इसको कहा हाँ देखो इससे ना पानी की सतह बढ़ जाएगी और फ्लड्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे. अब वो क्या है कि ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन. जब आपके आर्कटिक सर्कल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बर्फ जो है ना वो मेल्ट हो रही है. बर्फ मेल्ट होती है तो इसका मतलब है जो ओशंस हैं वो वार्म हो रहे हैं. जब ओशन का पानी गर्म होना शुरू हो जाता है तो वो जितना विंड का जो मॉडल है और पूरी दुनिया के टेम्परेचर का मॉडल है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो जहां पे वो पानी ठंडा होना चाहिए वहां पे गर्म चला जाता है और जहां पे गर्म पानी होना चाहिए वहां पे ठंडा चला जाता है, क्योंकि ओशंस के भी पानी हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स की तरह मूव करते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि जब गर्म पानी होगा ओशन में तो जो विंड सिस्टम उससे बनेगा उस मौसम के अंदर वो भी गर्म ही बनेगा. राइट. जब वो गर्म बनेगा तो वो अपने साथ पानी भी ज्यादा कैरी करेगा, वो ह्यूमिडिटी लेके आएगा, वो रेनफॉल लेके आएगा. तो वो क्या करेगा कि एक इलाका जिसका ओशन का पानी कभी गर्म नहीं हुआ, जब वहां पे वो गर्म पानी आ जाए तो आपको पता है क्या होता है? वो जो स्की रिजॉर्ट्स जो 100 years से फंक्शन कर रहे होते हैं वहां पे,
वहां पे बर्फ का एक जो है ना कतरा भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है कि जहां पानी जितना गर्म होता जाएगा, जितना वो प्रेसिपिटेशन रेट हाई होता जाएगा, उतना ही फ्लड्स वगैरह ज्यादा आते जाएंगे। लेकिन एक आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है, और वो भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, वो कैसे समझ सकता है कि वो जो आर्कटिक सर्कल में 30 डिग्रीज का टेम्परेचर आया है उसका मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ा, मुझे क्या होगा उसके ऊपर। इसी तरीके से जब आप कहते हैं ना कि भाई 70% लैंड जो है लाहौर का वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में तब्दील हो गया है, तो उसमें एक आम आदमी जो कि एक ऑफिस के अंदर काम करता है या एक दफ्तर का गार्ड है, वो कहता होगा अच्छा चलो ठीक है, हो गया है, मेरी जमीन तो नहीं है तो मेरी जमीन तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, और मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। वो उसके अंदर पूरी फूड बास्केट जो है वो आपकी मुल्क की तब्दील हो जाती है, because Lahore is one of those areas that is a food basket of Pakistan itself. Right. It has the most fertile land. It has River Ravi. It has Chenab. It has, other rivers, Indus River connecting to it. So you have a whole area that is a river system that has always been the bread basket of this region. और अब आप उसको इंडस्ट्री में तब्दील कर रहे हैं, तो आपकी पूरी फूड बास्केट तब्दील हो जाती है। अब आप कुछ चीजें वहां पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, पोल्यूशन भी है, सब चीजें हैं। लेकिन एक वो किसान जो है जो पहले अपनी जमीन पे अपना तंबाकू भी उगाता था, अपनी गंदम भी उगाता था, अपने करेले भी उगाता था, अपनी भिंडी भी उगाता था, अब वो जाके बाजार में से लेता है। राइट। अच्छा फातिमा, मेरा इधर एक और सवाल है, क्योंकि आपने अर्बनाइजेशन की बात की, जैसे शहर हमारे फैल रहे हैं और उनका क्या असर पड़ता है एग्रीकल्चर पे और उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे और हमारी जिंदगियों पर। तो इधर एक चीज है कि हम जो एक अपने जहन में एक डेवलपमेंट का नैरेटिव रखते हैं, ठीक है, कि जी डेवलपमेंट हो रही है, और हम समझते हैं कई बार, और ये आम एक लोगों में सोच होती है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे वो सोचते हैं जैसे गंदगी वो सोचते हैं कि ये तो जी गरीब तबके की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग अपनी स्लम्स करते हैं, और जो हाई राइजेस कॉम्प्लेक्स बनती हैं वो डेवलपमेंट उसको नाम मिल जाता है, ठीक है ना, कि वो तो अर्बन डेवलपमेंट है। हालांकि वो जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले एक जरखेज जमीन थी, एक फर्टाइल लैंड था, दैट इज इटसेल्फ वेरी डैमेजिंग, और उनके जो एसी चलते हैं पूरा दिन वो शायद एनवायरनमेंट के लिए और डैमेजिंग है। तो एक इधर हमारे जो इधर फोटो बनी हुई है दिमाग में कि डेवलपमेंट क्या होती है और एनवायरनमेंट क्या होती है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, वो खुद एक उस इकोनॉमिक सिस्टम के साथ हमारी जुड़ी हुई है, जिसमें वो एक तबकों में तकसीम हुआ हुआ है समाज के, एक ऊपर वाला तबका है, एक नीचे वाला तबका है जो बहुत ज्यादा है, और वो प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, ये तो जी बच्चे ही पैदा करते रहते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सब, क्योंकि ये चीजें हम अलहदा नहीं रख सकते ना, ये इस डिस्कोर्स का हिस्सा है। तो इसके बारे में आपका हाउ वुड यू थिंक अबाउट दिस? सो एनवायरनमेंट जो है वो एक सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, राइट, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट है, वो कहते हैं कि आपका नेचर इज नॉट अ फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। ओके, सो इसलिए नेचर के साथ कुछ चीजें एट्रीब्यूटेड हैं। नेचर इज वाइल्ड, नेचर इज अनकेम्प्ड, right? It runs its own course. It is in its own a force to be reckoned with. उसके सब अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचर जो है अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे चलती है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। उसका अपना एक खुदा है, वो अपने हिसाब से एक जगह को खाली भी करा सकती है, सब लोगों को मार भी सकती है, और उसी तरीके से जिंदगी भी दे सकती है, ठीक है ना। तो फिर हमने उसके अंदर से कॉन्सेप्ट बनाया मदर नेचर का और बाकी चीजों का। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि नेचर जो है वो हमारी जिंदगी से बाहर है, that nature is external to the human environment. जो इंसानी माहौल है, जो कुदरती माहौल है, वो उससे बिल्कुल बाहर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम नेचर को विजुअलाइज ही एज एन एक्सटर्नल एंटिटी करते हैं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अस। तो जब आप एक और हम उसका हिस्सा भी नहीं है, हम उसका हिस्सा भी नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जब कहते हैं कि, या एक्सपर्ट्स या वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि अगर आपने अपने आप को जो है फ्रेश रखना है और आपने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो आप कभी कभी उठ के नेचर में चले जाया करें, वॉक किया करें फॉरेस्ट के अंदर, और हाइकिंग पे जाया करें, और ये सब चीजें। ये एक लैंग्वेज जो है ये तैयार की गई है कि नेचर जो भी है वो आप नहीं है, वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ और बाकी सब चीजों से कनेक्टेड नहीं है। इट्स अ ट्रीट फॉर यू, राइट, वो आपके लिए एक ट्रीट है, ठीक है। आप उसको एंजॉय करें,
और आप उसको छेड़े ना, आप उसको तंग ना करें, और आप उसमें से जब चाहे आप अपने फायदे निकाल सकें उसको, और आप जब चाहे आप इस्तेमाल ना करें, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से डेवलपमेंट के अंदर, चूंकि डेवलपमेंट का ज्यादातर फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, तो उसने क्या किया है, उसने कहा है कि नेचर तो वो चीज है जिसके पास वो सारे खजाने मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप, ताकि हम तरक्की करें, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए, ताकि हम इंडस्ट्रीज बनाएं, ताकि हम जॉब्स बनाएं, ताकि हम एक टीवी खरीद सकें, ताकि हम वाईफाई लगा सकें, ताकि हम लैपटॉप ले सकें। ये सारी चीजें जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमें ऐसे ही मिल सकती हैं जैसे नेचर एक्सप्लॉइट होगी। There's also an element of human exceptionalism, especially पाकिस्तान में भी जब भी बात की जाती है ना, तो लोग हमेशा एक religious angle जरूर निकालते हैं। Like obviously वो एक सफाई निस्फ़ ईमान है वाली बात तो की जाती है in order to kind of say कि हाँ you should keep like your environment cleaner. But at the same time जब बात की जाती है about natural conservation या animal welfare की, there's always that argument used कि भाई हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो you know this world has been created for us. And it's in a sort of very strange way almost used as a justification for resource extractive behavior कि भाई मतलब अगर ये पूरी दुनिया बनी है हमारे लिए है, तो we are basically by extracting its resources we're basically doing exactly what we were destined to do or divinely destined to do. And in doing so I think a lot of times जो ethos है conservation की या welfare की, it does then come across as a somewhat outsider or externalized perspective, and there's a failure to, I guess, understand how it's not a choice of one versus the other. I had an argument with a friend about this the other day, where ye jo white rhino wali jo story thi, I posted this up on WhatsApp, and I had a very interesting argument with him because he's like, yaar dekho, there's a lot of people dying as well, why shouldn't we care for them? Matlab ek ambulance mein jo hai, matlab the example he gave me was कि like अगर एक ambulance है और उस ambulance में आप या 10 लोगों को बचा सकते हैं या 10 कुत्तों को बचा सकते हैं, who will you save? I'm like, why does it have to get into those sorts either of... or? Yeah, why does it have to be either or? Like what people don't understand is that if you are protecting the environment, you're actually protecting livelihoods, and those livelihoods are connected to your sense of food security, environmental security. वो सारी चीजें आपको affect करती हैं. But we've somehow, especially the way that we talk about this issue, हमने वो dots उस तरह connect नहीं किए हुए. अभी इस मिसाल के तौर पे वाटर का जो इशू है, लाइक ग्लेशियर्स के बारे में जब अभी बात की जाती है कि जी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हम क्या करें. अब आई वाज लिसनिंग टू व्हाट यू वर सेइंग एंड यू मेड अ लॉट ऑफ सेंस, बट द पॉपुलिस्ट इन मी वुड से कि भाई मुझे नौकरी आज चाहिए, क्लाइमेट चेंज 20-30 साल बाद होगा, व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट, राइट? बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि ये चीजें जो हैं आप अपने एक माइक्रोकॉस्म में ना देखें, यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर. अब जस्ट लुकिंग एट वाटर, for example, water scarcity is probably the next big conflict, which is, if not already, matlab it's probably one of the biggest conflicts currently in the region, जो इंडिया और पाकिस्तान especially को बहुत affect कर रहा है, and it's going to become the next big bane of conflict between these countries. It's no longer a case of, hoity-toity, liberal, elitist values. This is something that is going to affect over 1 billion people in the world. Right, but I have a more pointed question for Fatima. I mean, I agree with what you've said, Usman. मेरा question ये है कि उस्मान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था पॉडकास्ट की शुरुआत में, mitigation. Now, my question is mitigation possible जो हमारा present economic system है, जिसकी बुनियाद ही ये है कि अगर आज मेरी सेल्स मेरे फोन की 10 हैं तो कल 20 होनी चाहिए, नहीं तो तरक्की नहीं हुई, ठीक है? जिसकी बुनियाद ही है कि मुझे कल ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है नेचर से. अगर आज मैं 1 टन निकाल रहा हूँ तो कल 5 टन निकलेगा, ठीक है ना? तो उसमें अगर हम उसमें मिटिगेशन तो मतलब ऐसे होगा कि सैलाब आ रहा है शहर में और हम बाल्टियां लेके पानी निकाल रहे हैं, राइट? फॉर मी लाइक दैट इज द इमेज आई गेट. तो जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, तो वहां पे ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम से कितनी जुड़ी है कि जो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है जो हमें फोर्स करता है एक चूज करने का, या तो तुम इकोनॉमिक्स ले लो या तुम एनवायरमेंट ले लो, ठीक है? दोनों नहीं तुम्हें साथ में मिल सकते, राइट? तो यहाँ पे फातिमा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रोल के जो हमारा मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका क्या रोल है? एंड लेट मी टेक द नेम कैपिटलिज्म, उसका क्या रोल है हमारे उसमें? ठीक है, आपने लाइक प्रूव कर दिया कि आप SOAS के पढ़े हुए हैं. बहुत मुझे तो छींक आ जाती है, मैं कैपिटलिज्म को ब्लेम करता हूँ, बट
No, I think that's a very important question. अभी जब उस्मान ने मुझे introduce करवाया, I did not correct him when he was making my profile. He said that I'm a sustainability expert and I've worked on sustainable livelihoods and sustainability. And I cringed at the thought because sustainable development is an oxymoron. ठीक है ना, आप नहीं कर सकते. If you want to develop, then you can't have sustainable development. That's the cut off point. क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसा आपने कहा, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो सब कुछ. और सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करना है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करनी है, आपने उसको रेगुलेट करना है, और आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, जितनी आप मास कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पे जा रहे हैं, आपने उसको रिड्यूस करके रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन बेस्ड बनाना है. सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी. हाँ नहीं, अच्छा, तो इधर ना, क्योंकि आपने वो लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने की भी बात की थी, तो मैं इस बारे में एक्चुअली सोचता रहता हूँ, और क्योंकि एवरी फ्यू मंथ्स आई गेट डिप्रेस्ड अबाउट दिस, सो आई थिंक, और मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने तरक्की इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ पे उसका हिंदी इक्विवेलेंट है विकास. ठीक है, कि विकास आएगा जी, मोदी जी विकास लाएंगे, पता नहीं कौन है विकास, बट वो लाएंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक, अगर हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, जो कि तरक्की और इजाफे पे और एडिशन पे बेस्ड है, कि कल हमें ज्यादा करना है, और हम ये भूल जाते हैं कि ये तरक्की और ये जो विकास या जो भी है, दिस इज अ मीन्स टू एन एंड. और वो एंड क्या है? जो होना चाहिए था वो है खुशहाली, राइट? बट हम वो खुशहाली को भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली, और हम जो अपनी तरक्की और ये जो विकास और ये जो 5% GDP और 7%, हम इसी में उलझ जाते हैं कि जी 7% is automatically assumed to be better than 5%. अब उसमें हमारी जो लेक्स ड्राई अप हो जाएं, ठीक है, हमारे बच्चे का एयर पोल्यूशन से उसको एस्थमा हो जाए, दैट इज फाइन. ठीक है नहीं? So yeah, could you elaborate on this, because I don't know what the environmental take on this is. Sorry, I'm being very reductionist. No, it's fine. It's absolutely fine. It's like there is a risk scientist Ulrich Beck के नाम से, he wrote a concept called risk society. उसका risk society का concept ये है कि वो कहता है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाएगी, वो कुछ ऐसे खतरात हैं जिनको वो वॉलंटरली एक्सेप्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, वो उसको अपनाएंगे एज अ स्पोर्ट, वो उसको अपनाएंगे एज अ रेगुलर थिंग विद इन द एनवायरनमेंट. इट्स लाइक अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो अगर हमारे बच्चे को पोल्यूशन की वजह से एस्थमा हो जाता है, चलो यार कुछ नहीं, मैं इसके लिए कोई इंतजाम कर लूंगा, लेकिन मेरी 4 लाख की तनख्वाह लगी हुई है शहर के अंदर, तो मुझे रहना तो यहाँ पे है. वो एक आपको, बिकॉज व्हाट इट डज इज द होल डेवलपमेंट कनंड्रम या विकास का जो एक पूरा आइडिया है, वो आपको एक तरीके से एक चूहे की दौड़ पे लगा देता है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि अच्छा आज मेरे पास इतना आ गया है, इतना जीडीपी हो गया है, तो कल को इतना हो सकता है, तो आज मैं इसको एंजॉय नहीं करूंगा, मैं कल वाले के ऊपर जो है ना और ज्यादा काम करूंगा. तो आप वो क्या करते हैं कि आप उस रैट रेस में मुसलसल लगे हुए हैं. फिर हमने पूरी अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को उस विकास के साथ जोड़ा हुआ है, उस तरक्की के साथ जोड़ा हुआ है. ठीक है, कि भाई देखो आपने पढ़ना लिखना है, उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, तो जाहिर है अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहां की अच्छी डिग्री होनी चाहिए, फिर ऐसी डिग्री हो जिसमें पैसे भी हो. फिर उसके बाद आपने डिग्री भी ले ली, फिर आपने जो है ना शादी भी करनी है, अब उसके लिए आपने पैसा भी जमा करना है, आपने घर भी बनाना है, फिर उसके लिए घर के अंदर वो सारी मराद भी होनी चाहिए जिसके लिए आपने जो है ना लेके आना है किसी को घर पे. फिर आपने जब शादी हो जाएगी तो आपने घर के सारे लोगों का ख्याल रखना है, आपने वो सारे रिचुअल्स जो अपने लिए प्लान आउट किए हुए हैं, जिससे आपके पेरेंट्स भी गुजरे हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी गुजरे हैं, वो आपने सारे लिखे हैं. वो सारे आपके जितने भी जिंदगी के वो लम्हात हैं, वो सारे आपके कंजम्पशन के साथ जुड़े हुए हैं. जब तक कि आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उस जिंदगी के उस लम्हे से गुजर ही नहीं सकते. ओहो, इसने तो जो है ना सिर्फ 1 दिन शादी का रखा है, इसने 8 दिन के अंदर शादी नहीं की, इसने तो ना मेहंदी की, ना इसने मायों किया, ना इसने कुछ किया, ये तो कैसे शादी होती है. और अगर लड़की को घर नहीं लेके दिया और उसके अंदर सारा फर्नीचर नहीं डाल के दिया, तो वो कैसे शादी हो जाती है. ठीक है, वैसे खैर ऐसे भी शादी होती है, लेकिन ये है कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप कैसे गुजारा करेंगे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एवरीथिंग दैट वी डू, वी हैव दोज कंजम्पशन पैटर्न्स. फिर हमारे अपनी everyday life के अंदर, let's take 2 levels. One is the industry level, one is the everyday common man's life. ठीक है, तो अब industrial level पे you're into growth, you're adding more products, you're also capitalizing, you're also investing in new products as well, and then you're investing more capital to make it more, enhance it more.
उसके लिए आपको दरिया में जो है सारा केमिकल वेस्ट अगर डालना पड़े तो वो भी आप डालते हैं। आप जो है जितनी प्रोडक्शन में जितना पानी लगता है, जितना सॉइल लगता है, जितना भी फॉसिल फ्यूल लगता है, जो भी है, पेट्रोल है, लकड़ी है, जो भी है आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको लगाते हैं ताकि आपकी फैक्ट्री और आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। उसको कितना धुआं जनरेट करिए, वो कितना केमिकल वेस्ट जनरेट करिए, इससे कोई आपका तो ताल्लुक नहीं है ना। आपकी तो अपनी इंडस्ट्री, आपने उसको आगे लेके जाना है। और इसी तरीके से मैं एसी ऑन कर लूंगा, स्मेल चली जाएगी, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसी तरीके से एक आम आदमी जो है उसने कहा अच्छा सर्दी आ गई है, सर्दी के अंदर जो है, और फिर आम फिरने के लिए यू कांट वेयर हैंड वोवन वूल ऑल द टाइम। आप हमेशा घर के अंदर बुनी हुई वो तो नहीं पहन सकते ना। जीन्स पहननी है आपने, या फला सिंथेटिक मटेरियल आपने, जर्सी पहननी है, या आपने कोई और मटेरियल पहनना है ऐसा जिससे आप सर्दी से और गर्मी से गुजारा कर सके, जो कि मशीनों पे बनेगा और वो सब कुछ। आपको इसकी परवाह नहीं है कि एक पेयर जीन्स बनाने के लिए जो है ना 3 लीटर पानी लगे। आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मतलब एक फैक्ट्री जो है अगर वो 50,000 जीन्स एक दिन में बना रही है तो वो कितना पानी इस्तेमाल कर रही है एक जीन्स बनाने के लिए, अगर तो वो कितना पानी जाया कर रही है। आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि जो कोक, पेप्सी और जो भी आप ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें जितना आपको पानी पीना चाहिए उससे दुगना उसको बनाने में पानी लगा है। तो वो आपसे पानी का ग्लास जो छिन गया है वो शायद आप टैंकर बुलाना पड़ता है। बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली। सॉरी उस्मान, सॉरी, टू क्लोज, टू सून मैन, टू सून। सॉरी यार, सॉरी। नो बट या दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आज हमें मिनरल वाटर की आदत पड़ गई है, वरना टूटी का पानी जो है टैप वाटर वाज एब्सोल्युटली फाइन। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट टैप वाटर इन एक्चुअलिटी इफ यू थिंक अबाउट इट। तो इवन राइट नाउ इन पाकिस्तान हमारे पास जो बोरिंग का पानी जिसको हम कहते हैं ना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, मतलब जब पानी के टैंकर का इशू हुआ वी स्टार्टेड आस्किंग नेबर्स कि आपके घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा वो हमारे तो आ रहा है। और फिर जब और कुरेदा तो पता चला कि बोरिंग करवाई हुई है। फिर हमने कहा हम ही एक हैं इस पूरे मोहल्ले में जिनके पास बोरिंग नहीं हुई हुई, बाकी सबकी बोरिंग हुई हुई है। And just taking that consumption point further, the fact is कि boring करना to take out water has actually reduced the water table in Islamabad Rawalpindi district significantly. इसकी वजह से अब वाटर स्कैर्सिटी बहुत सिवियर होगी। एंड वंस अगेन वही बात है कि आपने अपनी इंडिविजुअल कंजम्पशन को प्रायोरिटाइज कर दिया है ओवर द ओवरऑल बेटरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लिविंग इन दैट स्पेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। हम ना उस तरह रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को हम इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि वी आर नॉट एग्जैक्टली लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस, वी आर प्रीटी मच जस्ट फोकस्ड ऑन द हियर एंड नाउ। और इसके अंदर भी ना फिर अमित उसके अंदर एक और चीज भी आ जाती है कि वो किसके पास वो ताकत है जो कि ये वाला काम कर सकता है। और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी स्लम्स के अंदर मिसाल के तौर पे अर्बन स्लम्स हम सबको पता है क्यों जो है ना वजूद में आते हैं। वो इसलिए वजूद में आते हैं क्योंकि हमें उन लोगों की जरूरत होती है जो उन अर्बन स्लम्स रह रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारे घर में मुलाजमीन के तौर पे काम करते हैं, वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो जितना भी मीनियल लेबर है वो हमारे लिए वो करते हैं। और हम कहते हैं कि उनके पास राइट नहीं है किसी भी किस्म के पानी के निकासी के निजाम का। हम कहते हैं उनके पास राइट नहीं है कि साफ पानी उनको मिले। हम कहते हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो बोरिंग कर सके। हमारे पास जो है ना सारे राइट्स ऐसे मौजूद हैं। हमारी अगर एक्चुअली आइडियल इमेजिनेशन ना जो अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास की, वो ये है कि जो डोमेस्टिक हेल्प्स हो और ये जो मैनुअल वर्कर्स हों कि वो एक परियों की तरह आए वजूद में और फिर वो एक छड़ी घुमाएं और इनविजिबल हो जाएं, कि उनको ना एक रहने के लिए घर चाहिए ना ही वो हो, यू नो, सो दैट दे डोंट स्लम, और वो हमारी वो शहरों को ना खराब करें और गंदगी ना फैलाएं। यू नो, इट इज रिलेटेड टू अस कि वी वांट देम कि जस्ट हमारी कन्वीनियंस पे वो वजूद में आ जाएं और फिर वो गायब हो जाएं कहीं अपने दुनिया में। But okay, just to, and because you know we are also running out of time, you mentioned in the beginning of the podcast about the role of language, and for me the role of language then is also related to politics. एक मुद्दा कब political बनता है, right? So in terms of going forward, ठीक है, आइंदा जो अभी नस्लें आ रही हैं और हम लोग जो हैं, how do we make environment a political issue and something with stakes, you know, so that people give rat's ass about it? Sorry, Usman.
No, it's fine. I think one of the ways that it has been done is in India actually. India के अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि फार्मर्स की मूवमेंट जो है पंजाब के अंदर, जो अभी रिसेंट है वो पंजाब के अंदर, और उससे पहले जो है जो पूरी नेशन वाइड जो है फार्मर्स मूवमेंट इंडिया में निकली है, वो किस लिए निकली है? वो उसी फ्रूट बास्केट के लिए निकली है। वो इसी चीज को एक्नॉलेज करती है और बार बार चीख के कहती है कि जो भी लोग ताकत में बैठे हुए उनको हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट देम एज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स अनलेस दे फुलफिल दीज डिमांड्स दैट आर लिंक्ड टू एनवायरनमेंट, दैट आर लिंक्ड टू नेचर, दैट आर लिंक्ड टू वाटर, दैट आर लिंक्ड टू फार्मलैंड, राइट? और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी एक जो है एहतजाजी एक वो आई है, लहर आई है, जिसके आज कराची में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, जिसमें लोग अपने लैंड राइट्स को अब क्लेम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो बहरिया टाउन की इंक्रोचमेंट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से पीपल आर नाउ, बिकॉज over the period of time in the last 50 years, the social development sector has given a lot of voice to the people. उनकी हमने community based organizations बना दिए हैं, उनको हमने लिंक करवा दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे जो भी ग्रुप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स वाले, उनके साथ हमने लिंक करवा दिया है कि अगर वो फैसला नहीं कर सकते, वो कम से कम अपनी आवाज तो सुना सकते हैं। तो जब आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं, तो आप उनसे मांगते क्या हैं? ये सबसे अहम चीज है ना। आप उनसे क्या पानी मांगते हैं? अगर आप उनसे पानी मांगते हैं तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि ये पानी आप कहाँ से देंगे हमें? राइट। ये कहाँ से आएगा? क्या किसी से चोरी किया हुआ होगा, या ये वो होगा जो कि प्रॉपरली इंसाफ के तरीके से आप तक पहुंचेगा? जो आपकी मार्केट में अभी इस वक्त फ्रूट पड़ा हुआ है, वो बाहर के मुमालिक से आया हुआ क्यों है? वो आपके अपने किसान का क्यों नहीं है? वो आपके अपने शहर के इर्द गिर्द जो कच्ची आबादी है, वो वहां से क्यों नहीं आया? ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें ना जो आपने डिमांड करनी है। आपने डिमांड ये नहीं करनी कि भाई मुझे मेरे घर में पानी चाहिए। आपने बाकायदा तौर पे माहौलियाती जस्टिस या माहौलियाती इंसाफ को डिमांड करना है। आपको एक अपना जो है इस्तेसाल करना है, अपने किरदार को थोड़ा सा देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या आपका क्या रोल है उस माहौलियाती इंसाफ, उस एनवायरमेंटल जस्टिस के अंदर आपका क्या रोल है, और फिर वो कैसे जो है आगे आप उसको दूसरों के लिए इंश्योर बना सकते हैं ताकि आपके बच्चों के लिए भी आगे वो इंश्योर हो सके। जस्ट टू ऐड टू दैट, आई ऑल्सो थिंक कि अगर इस इशू की पोलिटिसाइजेशन भी होनी है, इट हैज टू बी डन सो इन अ वे वेयर इट डजंट बिकम अ बिग ग्रैंड स्टैंडिंग प्रैक्टिस। अब मसला ये है कि whenever governments have been talking about these issues, one of the reasons why people don't care about climate change is कि उसके effects जो हैं, Rob Nixon is a distinguished academic, uses this term slow violence, कि क्योंकि climate change के effects जो हैं वो बड़े limited scale में नजर आते हैं, so you don't see them as massive issues until, let's say, a tsunami happens or an earthquake happens. So similarly to that, especially in Pakistan, the way these issues have been projected, like Imran Khan talks about the 10 billion tree tsunami, for example. या एक जमाने में दियामर भाषा डैम जो था, that was billed as the next big power project, कि हाँ यार this is something we're doing, but what people weren't seeing कि आप अगर दियामर भाषा डैम सेटअप करेंगे, the sort of effects that is going to happen to the local area, क्योंकि उधर earthquakes का बहुत ज्यादा जो है, there's a threat of that as well. Similarly, we need to stop looking at these issues in terms of कि this country is doing a lot, yeah, we're doing enough, why don't you talk to that country? That kind of politicization has to stop. There has to be a more cooperative experience of this. I think that's important. बिल्कुल। और I think अपनी language में से हम या निकाल दें कि रोजगार या साफ पानी, रोजगार या वो, और उसकी जगह और लगा दें रोजगार और, क्योंकि अगर आपको रोजगार है और आपको अगले दिन कैंसर हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो आप की बल्ले बल्ले कर लो अब अपनी जॉब की 4 लाख रुपए पर महीने की। तो ऐसे ही होता है ना। एग्जैक्टली। नहीं, वो आपने वो बहुत अच्छा कहा कि रोजगार और साफ पानी और रोजगार और ये सब चीजें, ये मुझे लगता है हमें अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए इसको। Thank you so much for that, Fatma. This was a really, really good and very interesting conversation. In terms of the fact that I think a lot of the notions that we held about environment and how exactly we should be talking about it, I think there's some really, really good points there. And thank you so much for enlightening us as well as our listeners. Absolutely. On this. And because environment और पानी और ये जो सारी resource scarcity और at least जो tanker आएगा मेरे घर में इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में, like these issues aren't really going away anytime soon. And I think we'd love to have you again.
That's it for today's episode of the Mitti Pav podcast. Thank you so much for listening to us. If you would like to send any response, our email is mittipavpodcast@gmail.com, mittipavpodcast@gmail.com. We're also available on Twitter @PAO_MITTI, and we're also available on Instagram and YouTube under the Mitti Pav podcast tag. Our special thanks to Ms. Fatma Amin, environmental science and climate change expert, for joining us in today's episode. Please do join us for the next installment of this series, where we will take a closer look at India's climate change issues and what we can do to mitigate them. Till then, Usman Zafar and Amit Julka are signing off from the Mitti Pav podcast. Thank you so much. Cheers.